میں چلیں اب آپ آئے ہوئے ہیں تو ایک اور بات بھی طے کر لیتے ہیں. ابھی آپ کے بھانجے نے ہی میرے سامنے ایک چیلنج اور پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کی کوئی بھی جو خاتون ہے وہ بھی اس موضوع پر اگر کوئی چیلنج دے تو وہ شمس الدین صاحب کی بیوی اس کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. کیا یہ چیلنج درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بھی لگایا کہ یوز آصف کے موضوع پر اگر کوئی قادیانی لجنہ گفتگو کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے چلیں وہ اچھا. اب میں نے اس بارے میں یہ بات پوچھنی تھی محترم, آپ میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو نیکی کی بات ہو وہ انسان آگے بیان کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں, میرا فلاں گھر والا یہ نیکی کر رہا ہے. کیا وجہ ہے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جو بیگم ہے وائس اسپرٹ صاحبہ, آپ عوام سے یہ چھپا رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیگم ہے؟ بات پوری کر لیں میں ہوں آپ کی اسٹریم کے اندر نہیں, موجود ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے میرے بھائی, آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں لوگوں کو؟ رضائی بتیجا حاضر ہے, آپ بات پوری کریں پہلے آگے. میرا سوال مکمل ہو گیا. اچھا آپ کا پورا ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پوائس میرٹ صاحبہ جو ہیں وہ ہماری اسٹریم میں آ کر الحمدللہ لیکچر دیتی ہیں. اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ نہیں, میں اعتراض والی بات نہیں میرے محترم, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کی بیگم میں آپ سے کہتا ہوں خواتین کے پیچھے نہ چھپے. ڈاکٹر صاحب مرد بنے, خواتین کے پیچھے نہ چھپے. میں تو میرے بھائی ایک مرد سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ آپ کی بیگم ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے مرفوض شوشے چھوڑنے یا چھوڑتے جائے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ کی کوئی خواتین کوئی بھی لجنہ پوائس پیریڈ صاحبہ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتی ہیں, میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. ٹھیک ہے آئیں اور کروا لیں. آپ مردوں میں سے سنیں ڈاکٹر صاحب پلیز ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ بات کرتے ہیں کتنی تسلی سے رضائی بتیجا سنتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایٹیکیٹس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. آپ کی اسٹریم میں آیا ہوں, آپ میری اسٹریم میں آئے, میں پورا ٹائم دوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, میں اپنی بات پوری کر لوں پھر آپ کر دیجئے گا. اور اگر آپ میں کسی میں دم خم ہے تو آ جائیے. مرزا صاحب نے جو الہامی قبر بتائی ہے یوز آصف کی, ٹھیک ہے, اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیجئے, ورنہ بصورت دیگر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ یوز آصف کی جو قبر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ میرے نبی کے قول سے ثابت کریں, میں آپ کے نبی کے قول سے ثابت کر دوں گا کہ یہ جو یوز آصف ہے یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. جب دل کرے, جس موقع پہ دل کرے, جس قادیانی کا دل کرے وہ مجھ سے گفتگو کر لے, میں تو حاضر ہوں. جی ٹھیک ہے. چھوڑے کبھی بھانجے کے پیچھے کبھی بھانجے کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی جو وہ پوائس پیریڈ آپ کی وائف ہے کبھی اس کے پیچھے چھپتے ہیں. مجھ سے بات کریں, میں بیٹھا ہوں آپ کی اسٹریم کے اندر جناب. ٹھیک ہے, بات ختم کر لی ہے. جی ابھی فی الحال صرف ایک بات ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ. جی کر لو سارے مشورے کر لو. ایک منٹ شمس الدین صاحب, ایک منٹ. ابھی شمس الدین صاحب خود یہ اقرار کر چکے ہیں کہ واقعی پائس پیرس میری بیوی ہے. وہ کس طرح کہ انہوں نے چیلنج دیا ہوا تھا کہ پائس پیرس وہ میری وائف سے مناظرہ کرے, کوئی بھی قادیانی لجنہ, یہ ان کا چیلنج تھا. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں قادیانی لجنہ تو وہ پائس پیرس صاحب سے کر سکتی, ٹائم طے کر لیں تو مان گئے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب پلیز ایک منٹ دیکھیں. اب یہ ماشاءاللہ کٹا تحقیق والے آئے ہیں تو ذرا مجھے ان سے بھی تو گفتگو کرنا ہے. آپ تو میرے کہتے ہیں آپ سے تو میری پرسنل میں بھی ہوتی رہتی ہے. ان لوگوں نے تو مجھے بلاک کیا ہوا ہے, ذرا اسی بہانے میں ان سے بات کر لوں. اچھا جی بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کوئی آپ کی لجنہ جو ہے وہ آئے, پوائس پیریڈ صاحبہ لیکچر دیتی ہے, لجنہ ان سے گفتگو کر لے, آ کے جس مرضی موضوع پہ کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی لجنہ آ کر, میں نے یہ اشتہار لگایا آپ کے سامنے, کچھ چھپا کے نہیں بات کی, کہ اگر خاص یوز آصف کے موضوع پر اگر کوئی لجنہ میری وائف سے بات کرنا چاہتی ہے, میں اس کو بھی کرانے کے لیے اپنی لائف اسٹریم کے اندر تیار ہوں. اپنا میں نے یہ اشتہار لگایا ہوا ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. وہ میر لطیف صاحب ہیں جماعت احمدیہ تعلق سے, ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے بھی گفتگو کر لیں. تینوں چیزیں ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی شمس الدین صاحب, میں آپ سے جزاک اللہ, ایک تو آپ مان گئے کہ پائس پیریڈ صاحب آپ کی وائف ہیں. چلے آپ کہہ لیں, آپ کہتے رہے, آپ نے تو میں نے کہا نہیں, وہ آپ کی وائف نہیں ہے, آپ کی وائف نہیں ہے. آپ چھپا کیوں رہے ہیں عوام سے محترم؟
وہ آپ کی وائف نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ صاحب انہوں نے کہہ دیا نا کہ مرد بنے تو وہ مرد نہیں نہ بن رہے, تو آپ مجھ سے مرد بن کے بات کریں نا, پوائس پیریڈ صاحب کے کہاں پیچھے چھپ رہے ہیں پھر؟ تو آپ بھی مرد بن کے جواب دے دیں. کبھی بھانجے کو میں نے تو دے دیا جواب, میں نے تو کہا ہے آئیں یوزی آصف پہ کس نے مناظرہ کرنا بتائیں مجھے. میرے بھائی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ وہ جو پائس پیریڈ صاحبہ ہیں آپ کی دوسری بیوی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, وہ بار بار عوام کے سامنے یہ غلط بیانی کرتی ہیں شمس الدین صاحبہ کہ وہ گویا کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی, اور میرے پاس ان کی وہ ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مذہبی ہونے کا یعنی کہ بننے والی خاتون اتنا بڑا جھوٹ عوام الناس سے کس طرح بول سکتی ہیں کہ وہ کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے جماعت کو چھوڑ دی؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ احمدی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی, وہ تو اہل حدیث گھرانہ تھا غالباً ان کا. ٹھیک ہے, اس لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے, پہلے تو اگلی سٹریم میں عوام کے سامنے آپ کی جو پائس پیریڈ صاحبہ ہیں انہیں کہیں کہ سب سے معذرت کریں, عوام کو بتائیں کہ انہوں نے بد کلامی کی تھی, یعنی کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی. اس کے بعد ہم ان کی بات کو سنیں گے, ورنہ تو میں تو جب بھی ان کی بات سنتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ بندہ عام بات میں, یعنی سو کہتے ہیں فیکچوئل لائے, ٹھیک ہے, وہ عام زندگی کے بات میں جو بندی جھوٹ بول گئی ہے, میں مذہبی طور پر میں کس طرح اس بندے کی بات کو قبول کروں؟ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے ان کی گفتگو وہ جتنی بھی کریں, لیکن اگر ایک بندہ اتنی یعنی جھوٹ بول جائے اپنے بارے میں, عوام کے بارے میں, آپ مجھے بتائیں ہم کس طرح سے ان کی بات کو باقی باتوں کا یقین کریں کہ یہ سچ بول رہی ہیں؟ جی بتائیں, آپ اس ٹیم کو ہوسٹ کرتے ہیں, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی ہوگی بات, میں نے کہا آپ کی. جی بالکل. اگر ان دو حضرات میں بھی کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لے, کیونکہ بیچ میں لقمہ لینا اچھا نہیں ہوتا. نہیں وہ میرا ہم آپ کے سوال کا جواب کیا دے رہے ہیں. ہاں جی, انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے, دیکھیے میں آپ کی اسٹریم میں آیا, آپ نے پہلے میرے بھانجے کا ذکر کیا, آپ نے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی, میں نے کہا ان کو چھوڑیں. آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہوگی, یقیناً میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی, وہ ہوئی ہوگی, اس کے ساتھ آپ نے جو بات طے کی ہے وہ آپ کریں. میں آپ کی اسٹریم میں آیا, مجھ سے بات کریں میرے بارے میں, ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک رہے گی بات پائس پیریڈ صاحبہ کی, آپ نے بڑی تقدو کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو, آپ پریشان ہیں ان سے کہ یار یہ کہ ہماری سابق قادیانی خاتون ہو کر یہ ہماری ڈانڈ اتار رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کیجئے نا کہ کوئی اپنی لجنہ تیار کیجئے, انشاءاللہ گفتگو کراتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ رہے گی کہ صرف جو میں نے چیلنج لگایا ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیلنج میں نے صرف اور صرف یوز آصف پہ لگایا ہے کہ اگر کوئی قادیانی لجنہ, آپ جا کے وہاں چیک کر لیں, میں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی قادیانی لجنہ میری وائف سے بات کرنا چاہتی ہے یوز آصف کے موضوع پر تو وہ کر سکتی ہیں. وائس پیریڈ صاحبہ تو ماشاءاللہ آل راؤنڈر ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی لجنہ لے آئیں کسی موضوع پہ, کسی بھی موضوع پہ, چاہے اجرائے نبوت ہو, ختم نبوت ہو, چاہے مرزا صاحب کا سیرت کردار ہو, چاہے یہ یوز آصف ہو, چاہے چاند سورج گرہن ہو, جہاں مرضی آپ اپنی لجنہ کو لے آئیں, میں اس کا اہتمام کروں گا, آپ پریشان نہیں ہونا. اب آپ مجھے بتائیے, بے شک سوچ لیجئے, بعد میں سر جوڑ لیجئے, جس طرح کے آپ کے حافظ مظفر صاحب نے ایک بندے کو کہا کہ ہم نے اس پہ ایک کمیٹی بٹھا دی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی شمس الدین کی ویڈیو کا جلد ہی ہم جواب دیں گے, 2.25 سال ہو گئے ہیں, تو آپ سر جوڑ کے مجھے میرے ان باکس میں بتا دیجئے گا, میں حاضر ہوں آپ کے پاس, چاہے آپ کی سٹریم ہو چاہے ہماری ہو. بات ایک ہی ہے, ہم نے دونوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق بتانے ہیں ہم نے. اچھا جناب, میرے ساتھ یہ جو بات آپ نے مظفر صاحب کی ہے, اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی؟ نہیں مبارک بھائی, ایک منٹ. وہ ڈاکٹر صاحب کو پتا, جنہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے ویسے, مبارک صاحب کی بات کا جواب دے دوں, مبارک صاحب کی بات کا جواب دے دوں. مجھے یار ایک سوال مجھے کیا جاتا ہے, میں آپ کی کیوں سنوں؟ انہوں نے مجھے سوال کیا, 2 منٹ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اپنی اسٹریم میں بلا کے ایسا نہ کریں یار. شمس الدین صاحب, میں آپ کا اصول آپ کے اوپر واپس لوٹا رہا ہوں. آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, آپ ابھی حافظ مظفر صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ یہ بندہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, خاکسار نے آپ کے بارے میں متعدد ویڈیوز بنائی, ٹھیک ہے,
अब मैं क्या आवाम को बताऊं कि फिर आप देखें, आपको पता ना कि आपके बारे में वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अब काफी कम कर दी हुई है। अब मैं आवाम को तो नहीं बताऊंगा ना कि आपने क्या मुझे कहा था तो मैंने फिर कम कर दी, इसलिए रहने दें बातों को, ठीक है? डॉक्टर साहब दिल खोल के बनाएं, मुझे ये धमकियां ना लगाएं। मेरी बात सुने, ये जो साबका ये जो आपने कहा फिर दोबारा पाइस पीरियड सपा के बारे में साबका अहमदी खातून, ये आप गलत बानी क्यों कर रही की आपने? वो तो साबका अहमदी नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी इस शमसुद्दीन साहब आपके पास ही मौजूद है। शमसुद्दीन साहब देखें आप एक मजहबी रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, और एक मजहबी रहनुमा से मैं तवक्को करता हूं कि वो आम दुनिया के मामलात में मेरे सामने सच बोलेगा। मुझे इंतहाई दुख हुआ इस बात का कि बावजूद इसके कि मैंने आपको ये बता दिया, आप एक दफा मान भी गए कि आपकी जो बेगम साहिबा है, जाहिर है हम उनकी इज्जत करते हैं, पाइस पीरियड साहिबा, आप मान भी गए कि वो आपकी बेगम है, फिर आप कह रहे हैं कि साबका अहमदी खातून वो मेरे भाई। आप झूठ बोल रहे हैं इस बात के अंदर। देखिए ऐसा ना कीजिए, आपको तो आदत हो चुकी है झूठ बोलने की। आप मुझसे कलाम कीजिए। आप, मैंने पहले कहा है कि ना भांजे के पीछे छुपिए, ना पाइस पीरियड साहबा के, नहीं कलाम कीजिए। आप इकरार करिए कि वो अहमदी नहीं थी। डॉक्टर साहब ये बात खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, मैं इसको खत्म अभी करता हूँ, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में। ये मैं शमसुद्दीन साहब को मेन स्क्रीन पर आ रहा हूँ, इनका चेहरा देख लीजिएगा। शमसुद्दीन साहब आपसे एक छोटा सा सवाल है, डॉक्टर साहब का भी मेरा भी, एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दे। क्या पाइस पीरियड साहिबा आपकी बीवी हैं, हाँ या नहीं? बस गल खत्म कर दो। भाई मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि नहीं है, ठीक है। चलो मैं डॉक्टर साहब आप सबूत पेश करता हूँ कि जिनकी बीवी है या नहीं है। मैं शमसुद्दीन साहब आप नाम भी, ओहदा भी, गवर्नमेंट लेवल भी सारा कुछ खोल कर रखने वाला हूँ। आखिरी दफा मौका दे रहा हूँ कि कहो कि हाँ वो मेरी बीवी है, मैं सब कुछ बयान कर दूंगा। मैं मर्ज़ियत की बेबसी पे हंस रहा हूँ। हाँ सारी बेबसी मैं यकीन करें, गवर्नमेंट लेवल भी दिखा दूंगा, मैं गवर्नमेंट ओहदा भी दिखा दूंगा, मैं मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, सारी तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा। इस तो बड़ी गल होल की है यार, मैं आप लोगों के घर तक पहुंच गया हूँ, किस तरह की बातें करते हो, फिर कहते हो कि झूठ बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूं आपको, देखे अब आपकी पूरी स्ट्रीम का महवर जो बन चुका है, आप इतने बुखला चुके हैं कि पूरी स्ट्रीम का महवर आपने मेरा कजन और पाइस पीरियड को बना दिया है। और रजाई भतीजा बैठा आपके सामने, मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्जा मसरूर का रजाई भतीजा। जरी भाई डॉक्टर साहब एक मिनट, इस टीम को मैं, इस टीम को डिलीट कर दूंगा यार, मैं कसम से डिलीट कर दूंगा। ये शमसुद्दीन कह दे कि मैं कसम खा करता हूँ कि पाइस पीरियड साहिबा के पीछे जो लड़की है, जो औरत है, मेरी वो बीवी नहीं है। चलो जी मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, चलो जी कह दो, कसम चौक के मेरी बीवी नहीं है, गाल खत्म। क्या नहीं, मुझे पहले ये बात बताइए। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दे, एक मिनट। आपको समझ नहीं है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप अगर ये कह दें कि पाइस पीरियड जो अकाउंट है उसके पीछे जो लड़की की आवाज है वो मेरी बीवी नहीं है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप वो मेरी बीवी नहीं है, आप ये हल्फिया बयान कसम खा कर दें कि वो मेरी बीवी नहीं है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। चलें जी, आपकी बात हो गई पूरी? जी मेरी पूरी होगी बात। हाँ, पहली बात तो ये बताइए, बात फिर वही आ गई, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, कभी आप भांजे के पीछे छुप रहे हैं, कभी पाइस पीरियड साहबा का, कभी कस्में कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं। तो यार मुझसे बात करें। रजाई भतीजा आपकी स्ट्रीम में आया है जी, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। मैंने फोन नहीं किया, हमारे कसम उठा दे, मेरे पास सबका नंबर दिया, मैंने फोन नहीं किया। फलानी ये है, टमकानी ये है। यार मैं आपके ग्रुप में आया, मुझसे बात करें, ये जनानियों के पीछे छुपना छोड़ें। तो क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी पाइस करते हैं यार, ये नहीं कह रहा मैं यार, कमाल करते हैं यार। लाइन अपनी लजना कोई मैं करवाता हूँ, मैं कहता हूँ लाइन कोई लजना मैं करवाता हूँ बात। शर्मा साहब आपको पता है कि कोई भी बात हमारी टीम का मेंबर जो है वो बगैर सबूत के नहीं करता। वो जी आप कसम खाए जी ऐसा है जी, कसम खाए जी ऐसा है यार, कोई बंदा बेचना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शमसुद्दीन साहब सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पाइस पीरियड साहब से बात करवाएं? आपसे तो कर रहा हूँ यार। मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, हमारे स्ट्रीम में आकर लेक्चर देते हैं आप इतना, मुझे लग रहा है आप चले इतनी गल मुकाने। चले जी मैं ये बात छोड़ता हूँ कि बीवी है इधर ही गल खत्म कर, तो आपने कहा नहीं है। चले फिर आप ये कहें
کہ पाइस स्पीड पीछे जो लड़की है वो मेरी बहन है, ए गल कह दो, तेरी बीवी नहीं फिर कह दे मेरी बहन है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गल ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸਕੰਜੇ ਅੰਦਰ, ਫਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾइस स्पीड ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ। क्या बात है, क्या बात है। ये बंदा कह रहा है जी मैं खौफजदा हूँ, हम खौफजदा हैं। खौफजदा आप अपनी बीवी ने दसा मेरी बीवी है यार। जरी भाई यहाँ तो शेर बनता है, फंस गई जान शिकंजे अंदर। ਇੱਥੇ शेर बनता है कि ए कादियानियों कर लो इस पे गौर, शेर जैसा भी बनता है। तो बहन कह देना, फिर क्या हर्ज है, कह दे बहन उसको बहन कह दे। कहने लगे ने बहन कहने लगे ने, ठहर जो शम्स साहब बहन कहने लगे ने। बात सुनिए मेरी, जरी साहब फिर मुझे कुछ कहना पड़ेगा, मिसाल देनी पड़ेगी। आपने मुझे स्ट्रीम पे लिया है ना, कोई मर्दों वाली यार बात करें। सारे हिजड़े आपने बैठा के, अब जब कभी वो कहते हैं जी भांजे के पीछे चले जाए, कभी कहते हैं जी पाइस स्पीड के पीछे चले जाए। और मैं चैलेंज देने हैं पूरी उम्मत मरज़िया को कि आए मेरे साथ यूज़ी असफ पे बात करें, और आप कहते हैं जी आप वो कसम खा दें। और यार कसमों पे अब मैं कहूँगा आपके बानी, बड़े एहतराम से नाम लेने लगा हूँ, आपके बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमों पे एतबार नहीं किया, तो मैं खाम खा आपके सामने कसमें खाता रहूं, ये करता रहूं। लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, ना खाएं कसम, ना खाओ कसम, कह दो मेरी बहन है यार, कह दे मेरी बहन है। और भाई मैं आप देखे ना, मैं आपके सामने ऐसी बातें क्यों करूं? मैं आप कसम, मैं जो आपके साथ ग्रुप में पाइस स्पीड सभा की बात ही नहीं करने आया। ये लोग देख रहे सारे कादियानी हंसेंगे आप पर कि आप इतने खौफजदा हैं उनसे। अच्छा कमेंट चेक कर रहे हैं, हंसेंगे, यकीन करें बस। जरी भाई नका तड़ाऊगा तुसी। चल एक मिनट, मैं कह रहे हैं कि तुसी हंसेंगे आप पे लोग। जी जी हंस रहे हैं, देखिए ये हंस किस पे हंस रहे हैं, ये देखें जी किस पे हंस रहे हैं, देखें जरा कमेंट चेक करते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ साथ साथ, चेक करें। हंस रहे हैं हम पे हंस रहे हैं, एक मिनट रुकें, ये लो जी, ये देखो ये आपका उस दिन इमरान कालो आया था ना, उसने जो गालियां निकाली है मुझे अंदाजा हो गया था उस पे। अच्छा छोड़े ना, इधर उधर की बातें छोड़े ना शम्स साहब, जो बात वो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। मैं जो बात करने आया हूं आप उसका जवाब दें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ। मेरी बहन बीवी नहीं है, सामने करम सुन लो, भाई हम आपके चैनल पे ऐसी बात क्यों करें? हम तो आपको ललकारने आए हैं कि रजाई भतीजे से बात करें। ठीक है, करें कि अपने चैनल यहाँ वादा करके जाएं, जहाँ पे वादा करके जाएं कि ठीक है जी मैं यहाँ पे नहीं इकरार करता, मैं अपनी आज कमाई घट गई, ये समस्या आज मैंने पता चल गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस साबिक खातून ने पूरी मरज़ियत ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ है। डॉक्टर साहब गौर करें, अब लफ्ज आ गया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। नहीं शमसुद्दीन साहब देखें, साबिक खातून से क्या मुराद, वो अभी खातून नहीं है, अभी भी खातून है। मैं कह रहा हूं साबिक कादियानी खातून। हां कादियानी बुखला के कादियानी खातून। इसके चेहरे देखे, मैंने इसका चेहरा लगाया फ्रंट पे तब ताकि इसकी बेबसी और इसकी बुखलाहट देखें सारे, मैंने चेहरा लगाया, बेबसी सारी दुनिया देख रही है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जब तक ये चीजें जिंदा है ना, कोई मुझे परेशानी नहीं है। बेगम ने इशारा कर रहे कि बोले ना पांडा फोड़ जाने, बेगम ने इशारा करी बोले ना। मैं इशारा किया कि जब तक ये किताबें जिंदा हैं, मेरी बेगम नहीं है। शमसुद्दीन साहब देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। मेरी आपसे सिर्फ ये दरखास्त है, आप जितनी हमने, मेरी बात सुने, सुन रहा मेरी आपसे बात कहीं से कहाँ पहुंच गई। मैं सिर्फ ये आपको ये बतलाना चाहता था कि देखें मोहतरम, आप एक मजहबी शख्सियत होने के दावेदार हैं, कम से कम अपनी जिंदगी के जो आम मामलात हैं उनमें सच बोलना सीखें, ठीक है। अब एक तरफ वो अपने आप को वो फिर बात इधर से उधर में आप निकालने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में एक और आपने इल्काब लिया हुआ है, अपनी बेगम का कुछ और किया हुआ है, अपने बच्चे का कुछ और किया हुआ है, सारी जाली है जी। तो इसलिए मेरे भाई पहले सच अपनी जिंदगी में उसको अपनाएं, फिर आपको सच समझने की अल्लाह ताला तौफीक देगा। मेरी सिर्फ आपसे इतनी दरखास्त थी, बाकी ये तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई है। ठीक है जरी भाई, मैंने जितनी बात करनी थी वो मैंने तो कर लिया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जी। जी नहीं शमसुद्दीन साहब, एक मैं बात करने लगा डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं। में शमसुद्दीन साहब स्ट्रीम में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे बाबर भट्ट हो, वो चाहे तार अहमद डार हो, वो चाहे आका का गुलाम हो, वो चाहे कोई बंदा भी इसकी स्ट्रीम में जाता है तो सारे कहते हैं पाइस स्पिरिट बहना,
पाइस पीरियड बाजी, पाइस पीरियड आप ही, लेकिन शमसुद्दीन साहब कहते हैं पाइस पीरियड एक और बात काबिल हो रहा है, एक और बात काबिल हो रहा है, जब शमसुद्दीन साहब बात कर रहे होते हैं तो पाइस पीरियड का माइक म्यूट होता है, क्योंकि ये एक ही घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार उधर उस माइक से मेरी आवाज ना टूट जाए। जब शमसुद्दीन बात करता है तो वहां से माइक म्यूट होता है, जब वहां से बात होती है यहाँ से माइक म्यूट होता है, और एक दूसरे के इशारे चल रहे होते हैं कि हूं तेरी बारी बोली मैं माइक म्यूट करना। ये इतने अवाम को धोखा दे रहे हैं। पानी बार बार वो थोड़ा था अभी खुला, पक्खा तेज चला, थोड़ा हवा को थोड़ी ठंडी हवा लगे, जरी कमरा भी तब्दील करवा देगा आज तो बाद। एक और बात भी है। अच्छा सुने, मुझे तो मौका दे दें यार, डॉक्टर साहब मुझे मौका दे दें। आपने मुझे डॉक्टर साहब आपने मुझे खामोश कराया, मैंने आपकी बात सुनी। डॉक्टर साहब ने ऐसा ना करें, अपने देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप ही ऐसा करेंगे, ठीक है, आप ही ऐसा करेंगे तो आप अपने साथियों को क्या मशवरा देंगे? बोले भाई बोले। हाँ डॉक्टर साहब मेहरबानी आपकी, सुनिए। देखिए बात फिर मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो आपने अपने साथ लोग बैठाए हुए हैं, इनको कम से कम कोई एटिकेट्स भी सिखाएं, गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाइए। सारे तीनों बोलते रहेंगे, मेरी बात क्या समझ आएगी किसी को? देखिए मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे समझ लग गई कि आप लोगों को कितनी तकलीफ है। आय हाय हाय आय हाय, मजा आ गया, यकीन कीजिए। एक बात, अच्छा दूसरी बात ये रहेगी, आप में से किसी ने बताया नहीं कि यूज़े आसफ वाले मौजू पे आप में से कौन सा बंदा मेरे साथ गुफ्तगू करने को तैयार है? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? आपकी बात हुई है ना, आपने ये कहा कि मुझसे मैं तैयार हूँ जनाब। ये फिर ये देखें डॉक्टर साहब, ये देख लें, बात आप में कर रहे हैं। डॉक्टर शमसुद्दीन एक मिनट, आपने पहले मुनाजरे के चैलेंज दिए तो डॉक्टर साहब ने उसी वक्त कबूल किया कि मैं तैयार हूँ, खादम हाजिर है, बंदा हाजिर है। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त कबूल किया है। पता नहीं आपका दिमाग किधर था, आपका जो कानों की टूटियां ना दूसरे में भी लगाएं ताकि आवाज खुली आए। डॉक्टर साहब ने उस वक्त कह दिया था कि मैं तैयार हूँ, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, और आपके भांजे के जरिए भी वो चैलेंज दिया गया कि वो हफ्ता हो गया कॉल का वेट करें, आपने की नहीं है। तो ये ना कहें कि कौन तैयार है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बार बार चैलेंज दे रहा हूँ, तो चैलेंज करना नहीं है। डॉक्टर साहब तैयार हैं, ये बात हो चुकी है, मुनाजरे की बात हो चुकी हुई है, तैयार है। तुसी तो आपस में सलाह करके टाइम रख के स्ट्रीम तक कर ली, मुनाजरा गल खत्म। तुसी दसो कि पाइस पीरियड साहबा तुहाडी भैन है हाँ या नहीं, गल खत्म हो गई। चलो जी, चलो जी। अच्छा जी, इन्हों जो कल्ले होवोगे ना, इन्हों जरा थोड़ा जिहा समझा देना। अच्छा हुण गल रह गई है कि तुसी आपने वो जो मैंने इश्तिहार लगाया है चैलेंज का, आपने देख लिया हुआ है? मैंने देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, समझ लिया ना करें उसकी। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी स्ट्रीम पर आप अगर गुफ्तगू करूंगा या आप हमारी स्ट्रीम पे आएंगे? मोहतरम जनाब, उसके लिए हम बाकायदा अल्लाह के फजल से देखें, मुनाजरा या गुफ्तगू के लिए बाकायदा शराइत तय होती है, वो हम तय करेंगे। मैं तो आपकी फोन का कॉल कर रहा था ना, आपने की नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें, उसको एक तरफ कर दें, उसको एक तरफ कर दें। आप वो जो आज मौजू हो रहा है डिस्कस, देखें शमसुद्दीन साहब, मैं फिर बड़े प्यार से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने जो बुनियादी इस्लामी अखलाक हैं उनको दुरुस्त करें, पहले सच बोलना सीखें, अपनी फैमिली को सच बोलना सिखाएं। एक खातून जो कि अहमदी कभी अपनी एक घराने में पैदा ही नहीं हुई, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि लोगों को वो इस तरह की बातें कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको माफ करे, कि जी मैं जब अहमदी थी तो हमें ये बताया जाता था, हमें ये कोर्स करवाया जाता था, मैंने सारी डाउनलोड कर ली हुई हैं, उन डिलीट ना करना, मेरे को सारी डाउनलोड हुई हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ मेरा ना करना, और ये ना कि वो मैं जाके डिलीट करना, मैंने सारी डाउनलोड कर ली हुई है। तो इसलिए मेरे भाई अपने घर पे पहले मेरी आपसे आजाना दरखास्त है, सच बोलना सीखें, सच अपने घर वालों को सिखाएं, उसके बाद दूसरे आप इस काबिल होंगे कि आप हमारे जैसों को या दूसरों को सच बताएं, ठीक है। इससे पहले हाँ आप होना ये चाहिए, अगली स्ट्रीम में आप पाइस पीरियड साहब ऐसे कहें कि सारी आवाम से माफी मांगे कि उन्होंने झूठ बोला, आप माफी मांगे, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए अब आपकी बात जी डॉक्टर साहब बात होगी, अब मेरी सुन लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि अभी भी आपका वही रड्डी रोना यहाँ पे चल रहा है कि वो जी ऐसे है, मेरे भाई जुबान ठीक रखे, मैं कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ चले अभी भी आपका वही मसला चल रहा है जो आप करते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे इसलिए आया था कि मैं आके इस चैलेंज के बारे में पूछूं कि जमाते अहमदिया का कोई फर्द इसको कबूल करता है कि नहीं करता। आपने कर लिया है, आप मेरे इनबॉक्स में सारी शराइत तय कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपने झूठ बोला, आपने कहा जी मैंने सारी डाउनलोड कर ली है, तो मैंने कहा जी सारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आपने कहा जी वो आप डिलीट कर देंगे। देखे
میں نے یہ نہیں کہا ڈیلیٹ کر دیں گے، میں نے کہا شاید آپ سنیے گا الفاظ اپنے بعد میں سن لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. اچھا اب صرف بات اتنی ہے کہ آپ اس چیز سے کبھی نہ گھبرائیں. الحمدللہ جب وقت آئے گا ہمارے پاس بھی بہت کچھ پڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اس چیز کو. مگر اس وقت جو میں آپ کے حالات دیکھ رہا ہوں، ایک وہ جو عطیت الغفار آئی ہیں انہوں نے بھی آپ کو ایسا اس لیول پہ لے گئے. عطیت الغفار کے پیچھے نہیں چھپے، میرے بھائی پیچھے نہیں چھپنا کسی کے. چلیں چھوڑ دیتے ہیں، ہماری باتیں ہو رہی ہیں. ہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر مجھ سے بات کریں ادھر آپ کے پیچھے چھپتے رہے. میں تو چیلنج دینے آیا تھا، آپ پتہ نہیں کبھی وہ میرے دیکھیں آپ نے گفتگو مجھ سے کرنی کے بھانجے سے کرنی ہے. تو آپ اپنے بھانجوں کو بتائیں کہ وہ پھر میرے پرسنل میں آ کے چیری نہ دے. اگر وہ کچھ کر رہا ہے، دیکھیں میں اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب دے، اسے کہ جی شمس الدین کو میرے سامنے کو پیش کرو، لے کے آؤ. اور بھائی جان وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کہیں چیلنج سے دوڑا ہوا ہوں، میں دکھاؤں اس کو، میرا ابھی دکھاتا ہوں اس کے جو فکرات ہیں. ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہے، اس لیے آپ کے بھانجے کو ابھی دیکھیں، میری شرافت دیکھیں. میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو فون کر واپس آج کہوں کہ اے تیرے مامے دا حال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ کال کریں گے، کال ہی نہیں کی، میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک طبیعت ہے جو بھی ہے، اس لیے چھوڑیں اس بات کو. ڈاکٹر صاحب آخری بات کرنے لگا ہوں. آخری بات ڈاکٹر صاحب، آخری بات ایک منٹ ڈاکٹر صاحب سے آخری بات مجھے کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، پہلے بھی آپ سے میری جب گفتگو ہوتی تھی، جب آپ نے مجھے کہا کہ ہم رشتہ دار ہیں، پرسنل میں ہماری باتیں چیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس میں بھی گھر والوں کی میرے آواز آتی تھی. ایون آپ کے گھر والے میرے سامنے بھی آئے 2-3 دفعہ کمرے میں، مگر میں نے کبھی بھی ان کو منظر عام پہ میں نے نہیں لے کے آیا. آپ نے پہلے بھی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ آپ جان بوجھ کر اگر کسی آپ سے گفتگو دوران میری کوئی وائف بول رہی ہے بچوں کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی، تو آپ نے اس کو ویڈیو کو بنا کے یہ لوگوں کو پیش کیا کہ یہ دیکھیں جی پیچھے شمس الدین کی وائف بول رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت آپ نے مجھے کہا تھا یہ ہماری پرسنل باتیں ہیں. آپ کی تو میں اس عادت سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ بات رہے گی کہ آپ سے گفتگو کی انشاءاللہ وہ ہم کرتے ہیں. ہمارا لیکچر ضرور جاری ہے. اگر آپ کو اس لیکچر پہ اعتراض ہو، اگر آپ کو پوائس پیریڈ صاحبہ کے اس لیکچر کے دوران کوئی بات غلط نظر آتی ہے تو آپ ہماری اسٹریم میں آئیے، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کو اس کا جواب دیں گے. یہ سلسلہ تو انشاءاللہ تھا جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے چلتا رہے گا. کوئی علمی گفتگو کیا کریں، یہ جو باتیں ہیں نا یہ نہ کیا کریں کہ جی وہ فلاں ایسے، جی آپ کا بھانجا، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کا یہ. اتنے بڑے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے، مگر ابھی تک آپ کی عادتیں وہی ہیں، ان کو تبدیل کر لیجئے. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. آخری بات میری طرف سے شمس الدین صاحب، میں نے بھی تو عوام کو بتانا ہے کہ جس کو وہ مذہبی رہنما مانتے ہیں، بعض تھوڑے ہی نے جڑے بندے نے، وہ ان کی اخلاقی طور پہ، اسلامی طور پہ یہ اخلاقیات ہیں ان کے، یہ میرا فرض ہے میں بتا دیتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں یہ جو جتنی بھی گفتگو ہوئی لوگ نتیجہ نکال لیں گے، آپ پریشان ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں. میں کیوں گھبراؤں گا؟ جزاک اللہ. آپ کی گھبراہٹ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پائس پیریڈ کے نام سے آپ کتنے پریشان ہیں. میں یہ پریشان ہوں میں آگے آپ کو موقع مل گیا. پائس پیریڈ صاحب کے نام سے اتنے پریشان ہیں، پائس پیریڈ صاحب کے نام سے اتنے پریشان ہیں کہ اس کو اپنی بیوی ماننے پر تیار ہی نہیں ہے. اتنے پریشان ہیں، اسی دیکھ لو، اتنے ایسی پریشان ہیں، اتنے ہم گھبرائے. میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں کہنا نہیں چاہتا تھا شمس الدین صاحب، نہ بیوی مان رہے ہو نہ بہن مان رہے ہو. آپ ایسا ہی کرتے ہیں، آپ نہ کہتے ہوئے بھی باتیں کچھ ایسی کرتے ہیں جس پہ پھر مجھے پھر لحاظ کرنا پڑتا ہے. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے لیے کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ والدہ صاحبہ جو ہے وہ مجھے پھر ڈانٹتی ہیں. ورنہ چونکہ آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، آپ کو تو کوئی ڈانٹنے والا ہے نہیں. آپ میری مجبوری سمجھتے ہیں اس بات کی کہ بہت ساری آپ کی باتوں کو میں اس لیے اگنور کرتا ہوں کہ پھر وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. امی کہتی ہے کہ تم کیوں یہ کے ساتھ کھائے بکھائے کرتے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو تو علمی ہو. لوگ دیکھیں کہ ایک کزن جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا ممبر ہے، ایک کزن جو ہے وہ الحمدللہ اسلام کا ممبر ہے. تو ہماری گفتگو اچھی رہے گی، لوگوں کو فائدہ ملے گا اس سے. کون سے اسلام کا؟ انشاءاللہ وہ سب کو پتہ ہے. کون سے اسلام کا؟ جو مرزا قادیانی کا دعوے سے پہلے تھا. نہیں، کون سا تھا؟ بتا دیا نا، آپ کو نہیں پتا؟
बता दे। चले ठीक है, चले एक मुबारक नहीं, मौजू नहीं इधर उधर करना डॉक्टर साहब, कितने भी नहीं जाना, या आज भैन कहेगा या आज बीवी कहेगा, किताबों में लिखा हुआ है, बहुत लंबी स्ट्रीम हो गई है, तो जरी ने तेरी जान को नहीं छड़नी है। मैं नहीं छड़नी पावे 15 घंटे मुझे ब्लॉक किया हुआ है सारों ने, मैंने ब्लॉक किया है, मैं अभी इसको स्क्रीन शेयर करता हूं, मैंने ब्लॉक किया है। शमसुद्दीन खुदा खौफ करो, दाढ़ी एडी वड्डी कर ली, शर्म फिर भी नहीं आंदी, अल्लाह दी कसम मैं तेन ब्लॉक नहीं किया। अच्छा यार गाल लगाओ शमस साहब, या भैन कह दो या बीवी कह दो, कुछ कह दो यार, जान छड़ाओ। चलो इस तरह करो, एक मिनट एक गल होर मकाना चाहिए शमसुद्दीन, एक और बात बात है यार, ए भी ना कह, मैंने पता तू नहीं कहना, एक और बात इस पे खत्म करते हैं, को थोड़ा हौसला रख, थोड़ा पानी तो कोट और पार। अच्छा बात इस पे खत्म करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रीम में जो पाइस पीर साहब आपके ही चैनल पे करेंगी, यहाँ पे हल्फिया बयान दे के जाए, ठीक है जी मैं उनको कहूंगा, वो मुझे भाई कह दे, चलो जी ऐसी गल मुका दो। मैं ये समझा था शमसद जरी भाई कि तुसी कहने लगे हो कि ऐ कह दो कि मेरे बच्चों की मां नहीं हैगी, तुसी किधर लगे हो गल। हाय 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 कितनी, एक मिनट, मैं यकीन करो, एक और आखिरी बात शमसुद्दीन, एक और आखिरी करो, मैं कादियानियत दी बेबसी तो देखी सी, मगर इस मामले जो मैं देख रहा किन्ने बेबस ने। हाँ सारे वाकई ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾकई नहीं हैगी। ए देखो सारे बेबसी देख लेने, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मुबारक भाई, आ देखो इधर देखो बेबसी, ये लोकल बेबसी देखो, आ देखो जी ये कितने बेबस अहमदी नीचे रो रहे हैं, अहमदी कि यार हम कितने, देखो ये अहमदी रो रहे हैं। मेरी बात सुने, वो आपका इमरान का लो आया था ना, उसने भी इसी तरह गालियां, इमरान कालू किधरों बेचा जाता है यार, अपनी गल करो। इमरान कालू कदी रजाई च लुक जाते हो, कदी इमरान कालू दे पीछे नस पैंदे हो, अपनी गल दा जवाब दो। शमसुद्दीन के लिए एक और ऑफर है यार, एक और शमसुद्दीन साहब आपके लिए एक और ऑफर है, आप कह दें चलें यार, ये भी ना कहें कि वो मेरी बहन है, ये भी ना कहें मेरी बीवी है, ये भी वो भी ना कहें कि ये मेरा भाई है, चलो यार तू इंज कह दे कि ठीक है यार मेरी बीवी ने, मैं उन्होंने 3 बारी तलाक 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 इंज कह दे चार। क्या बात है, क्या बात है जरीउल्लाह साहब, आपकी बेवकूफी पे लोग हंस रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, और इसका एक मिनट आए बाएं तौबा या अल्लाह तौबा, देखो ये लोग हंस रहे हैं, देखो जी लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, देखो लोग हंस रहे हैं, ये भी देखें, ये भी देखें, नहीं हंस रहे। अच्छा सुन तो लो, मेरी भी गल सुन लो ना, चलो सुनाओ, मेरी गल सुन लो ना, जरूर जनाब, मोस्ट वेलकम यार। देखिए हमारा जिगरा देखें, आपका चेहरा देखने वाला नहीं, उसके बावजूद हमने फ्रंट स्क्रीन पर लगाया है। जरी भाई अच्छा यार बात सुने, पता की उन्होंने खुद क्या सी शमस साहब ने कि जड़ी है ना अहमदियां दी मुखालफत च पैसा बहुत ज्यादा वे, तो उन्होंने क्या सारा खानदान रल के करने। आप इस चेहरे को, जो आपकी तस्वीरें है ना, ये डॉक्टर साहब ने एक दफा मुझसे सवाल किया था, मगर चले डॉक्टर साहब को मैं देता हूँ, आप इस चेहरे को अपने बानी के साथ रख के मुआवजा करें, फिर आपको पता चल जाएगा क्या चेहरा है। अच्छा अब अगली बात सुन लें, सुने जरी साहब बात, थोड़ा म्यूट हो गया जे, मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने म्यूट किया, मेरी बात सुनो जी। जरी साहब माइक नहीं म्यूट, मैं बताता हूँ मैंने क्यों माइक म्यूट किया, मैं बताता हूँ। ये जो नबी सल्लल्लाहु के मतलब जो ये मिर्जा साहब के मतलब ये जुबान दराजी किया ना कि वो ये है कि वो शक्ल मिला लो, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब कुफार मक्का ये इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु के चेहरे पर नूर नहीं था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी। अब असल मौजू उनके हुस्न की तो गवाही कुरान देता है, असल मौजू पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की गवाही तो कुरान देता है। और आप देखें कैसी बात कर रहे हैं यार, सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए, वो जो कुरान पाक गवाही देता है वसल्लम के हुस्न की, क्या वो अबू जहल मानता था उस हुस्न को? अबू जहल नहीं मानता था आपकी तरह मेरे मोहतरम, इसलिए ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। अब सुन तो लीजिए, मुझे पता थोड़े से सुनना है, अल्फाज हो गया, मैं मानता हूं, बात तो सुन ले बीवी इना दस दे, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा यार। चलो यार मैं ये भी कह देता हूं, मैं यार डॉक्टर साहब ये भी बात कह देता हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कह देता हूं, मैं आपकी तरह मौजू से हटने वाला नहीं हूं, ठीक है। मौजू ये है कि पाइस पीरियड साहब आपकी बीवी है या नहीं, देखे ना, ये मौजू एक वो बोल पड़ता है, एक वो बोल पड़ता है। आपकी स्ट्रीम का मौजू ये था आज का, जब आप आए हैं तो ये मौजू है, आप बताएं ये मौजू था। डॉक्टर साहब एक मिनट, इसलिए ये कहा कि मेरी स्ट्रीम का मौजू ये था। चलें शमसुद्दीन साहब आपको
इसी बात के जवाब आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा ये इसलिए किया जा रहा है कि मुझे वो बात भूल जाए, मैं इसका जवाब ना दे सकूं। आपने कहा जी मेरी स्ट्रीम का मौजूद ये था, तो मैं ये बताऊं कि हमारी स्ट्रीम का मौजूद था, उसके मुताबिक आपने बात नहीं की, उसके मुताबिक मेरी बात सुन ले पहले ना। मुझे जमाते अहमदिया की लोगों से मुनाजरे करते हुए उनकी रमजों का पता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता, ताकि शमसुद्दीन के ज़हन से वो बात निकल जाए। देखिए बात सुनिए, कादियानी मजहब के अंदर जरूर ऐसा होता है कि वो नकाब पे नकाब पढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं इन चीजों को कभी भी आपके सामने नहीं पेश करता कि क्या हुआ, मैंने कभी चनाब नगर के अंदर के अंदरूनी हालात पेश नहीं किए, ये मेरे मौजू नहीं है। मैं आपसे फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी अगर कोई मुरब्बन समझते हैं तो उसको लेके आइए, किसी भी मौजू पे पॉइस पीरियड साहब से गुफ्तगू करवा दीजिए। एक, अब आप हटते हैं, आपने मुझे पता छुपना है, मैं उस तरफ नहीं जाता। दूसरे नंबर पे, अगर आपने यूज़े आसफ के मौजू पे आपकी कोई खातून आ सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के जरिए, अपनी वाइफ के जरिए उससे गुफ्तगू करवा सकता हूं, सिर्फ यूज़े आसफ के मौजू पे, ठीक है। अगर आपका कोई मुरब्बी कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है, मेरा रज़ाई चाचू कर सकता है, तो वो मुझसे यूज़े आसफ के मौजू पे आके गुफ्तगू करे, वो मैंने चैलेंज दिया है। ऊट पटांग की बातें आप मारते जाएं, मुझे पता है आपका काम है, आप लोग इस्लाम को भी बदनाम करना चाहते हैं, आप लोग हर बंदे को बदनाम करना चाहते हैं, तो जी हाँ जरी भाई भी लगाते रहेंगे, रिमूव ना करें जी, ठीक है। ये भाई साहब ने जो है ना, इन्होंने कभी भी वो उधर नहीं जाना जो असल बात यहाँ पे हो रही है, ये इसी तरह इनकी आदत है ना, इन्होंने माजरत करनी है। चलो शमसुद्दीन साहब माजरत ही कर लो, माफी मांग लो आवाम को लो। डॉक्टर साहब ये तो आपने पिछली जब 26 मई आई थी तब भी आप यही बात कहते, तो ये तो तकिया कलाम है आपका। हाँ तो याद वो है पिछली 26 मई? हाँ जी, वो जिस दिन आप आके बेइज्जत हुए थे स्ट्रीम में लाइव, वो 26 सारा देखा, बिल्कुल वही 26 आपने सही पहचाना है। इस दफा भी लीजिएगा मुझे 26 को, इस दफा भी 26 मई को लीजिएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जरी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो इसी तरह स्ट्रीम लंबी चलती रहेगी। हमने जो आप जो मैं तो वेला मैंने कोई टेंशन नहीं, मैं तो वेला चलन दियो, बात नहीं करनी डॉक्टर साहब। अगर आप मसरूफ हो गए हैं कोई मसला नहीं, हर बंदे की मसरूफियत होती है, अगर आपको कोई जाना है काम है, मुबारक भाई को काम है तो वो कर सकते हैं, जा सकते हैं। जरी भाई क्यों दुकानदारी बंद करानी जी ओदी बेचारे दी? नहीं बंद हो गई है, ये मुंह मन्ने है, कभी या मेरी भैन है या मेरी बाजी है या मेरी खाला या मेरी फुफी चाची चाची या कोई भी है मन्ने, या मेरे बच्चों की मां नहीं हैगी, या मेरे बच्चे की मां नहीं है, कह दे। जरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जरी साहब ये नहीं मानेंगे, उस दिन मीर साहब 5 घंटे लगा चुके हैं कि वुजू करा ले, वुजू नहीं कर सका, तो इसने आज ये कैसे बात? अच्छा जी जरी साहब बात पता क्या है, कभी वजू टूट जाता है, कभी भैन नहीं कहना। आप लोगों का तो शेवा है कादियानी जमात का, मैं बता दूं, सुनिए अब सुनिए तो सही। अच्छा मिर्जा साहब ने सुन तो लीजिए, मोहम्मदी बेगम के बारे में ये एमए साहब पहले दफा बोले, सुने मेरी बात सुने, मोहम्मदी इश्तिहार तक छापे मिर्जा साहब ने, ठीक है, मोहम्मदी बेगम को बदनाम किया। और यार वो नहीं बात हो रही, बात आपकी हो रही है यार, बहुत मोहतरम है वो, हमारे हमारी हाल है, इसको रिमूव ना करें। नहीं सुन ले मेरी बात, सुन ले। एमए साहब आए हैं, इनको बोलने दे, ये अभी बोल रहे हैं, ये काफी देर से एमए साहब में भी थे, काफी देर से निकलना नसन लगा जी, ए दी बीवी मान के नसन लगा जी, हो गया जी, ए देखियो लोगों दी लाइव नसना देखियो, लाइव नसना देखियो। 1 2 3 माइक म्यूट ना करें, हिम्मत है तो माइक म्यूट ना, ओ हिम्मत है साडे च, तू गल नहीं करदा, दस तेरी बीवी है या बाजी है, क्या हिम्मत है? माइक म्यूट ना करे, सुने फिर तू मैं वेला हूं जी, लगा रहा है जी, नहीं चलता रहे काम। अच्छा जी मैं अपनी बात करता हूं, सामीन इकराम, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइस स्पिरिट साहब का छेड़ी है, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि क्यों छेड़ी है। वो ये था कि इसने अपने स्ट्रीम की हर मौजूद जनाब वो साहब का कादियानी है, साहब का कादियानी खानदान से उसका ताल्लुक था, इसलिए हमने इसका नहीं, तो इसलिए भांडा फोड़ा के बताया कि उसकी बाजी है या बीवी है। मन्ने है नहीं मनना है, कभी भी नहीं मरना, या मार जाएगा प्याला पी का मौदा, मन्ने का तो कटना पड़ेगा, मन्ने बीवी मेरा स्पीकर म्यूट नहीं
लगा रहा फिर आज मेरा स्पीकर म्यूट नहीं कर, बोलने नहीं देना रजाई भतीजे जी, रजाई भतीजे को रजाई भतीजे को रजाई भतीजे की सारी रजाई पाठ की है, रजाई भतीजे को। और यार ये देखिए, चलें जी गल मुकाने पाई स्पिरिट साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बस बशीर अहमद एमए साहब भी थे मेरी बात जी, मैं एमए साहब आए हैं, पाई स्पिरिट साहब आपकी बाजी है यानी इन्ना गल दस दी। हाँ जनाब मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुने, स्पीकर म्यूट ना करें मेरा, मुझे बात करने हैं। जरी भाई साहब की बात नहीं हो रही, जरी भाई ये इनको 2 मिनट नीचे दें, ये पीछे पूछ लें अपनी बेगम से कि इन्होंने क्या बयान देना है। इन्होंने भी क्यों ना दी रोटी बंद करा दी हो, कसम से ना जाना जी, मतलब रिमूव नहीं करता, पहले नाच जाना है। और ना तंग करो, रात ही रोटी नहीं मिली। स्पीकर म्यूट ना करें मेरी बात सुन ले। मुबारक भाई 1 मिनट यार, शेर पढ़िए फांस की जांच के अंदर से, जल्दी पढ़िए जल्दी। हंस गई जान मेरी बात सुन, शिकंजे मिर्जा कादियानी जिवें वेलणे ते विच गन्ना इतना ही काफी है वास्ते। बस ठीक, बेहतरीन, मैं कहना कमाल हो गया। ये लोग देख रहे हैं जी लोग देख रहे हैं कि आप अपनी बीवी से भी भाग रहे हैं। बीवी को लोग देख रहे हैं कि कैसे रजाई भतीजे को बात नहीं करने दे रहे। रजाई भतीजे को बड़ा स्पीकर म्यूट कीजिए, मेरा स्पीकर म्यूट ना कीजिए। सुनिए आप जी आपने बताना कि पाई स्पिरिट साहब आपकी बीवी है या नहीं, सिर्फ मेरी गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਮਏ इसने ये कहा है कि जी मैं दसना वा, सबर करो जी, दसो जना, चलो सबर करो। हाँ ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਵਿੱਚ। अच्छा ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਜਾਂ ਐਮਏ ਮੌਜੂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂ ਹੈ ਪਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਾਨ ਛੜਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ म्यूट ना करो मैनू। अगर हिम्मत है तो बर्दाश्त करो, सबर करो। वाइस स्पिरिट साहबा हमारी स्ट्रीम की एक मज़द खातून है, वो हमारे साथ आके लेक्चर देती हैं। हम उसके बारे में बार बार आपको कह रहा हूँ कि उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है? अब बात सुने अब सुने, अब चुप करो ना यार, बोले ना करो यार, तुझे तहकीक है ताकि थी। अच्छा सुनो, मैं अपनी तहकीक 1 मिनट शमसुद्दीन, मैं अपनी तहकीक पेश करा, मैं नाम एड्रेस मैं मोबाइल नंबर है मैं सारा कुछ शेयर करा, फिर दसा तहकीक की है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜਮੂਆ ਵੈਗਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਰਜ਼ਾਈ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये इल्जाम जो लगते हैं ना, ये इल्जाम कुफारे मक्का भी लगाते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहना गल तो सुन लो, मेरी गल तो सुन करो पूरी यार। सुनो, किसी भी जगह ते कोई बंदा ये बात कर दे कि मोहम्मद बेगम की यहाँ बात हुई है, किसी ने भी नहीं की थी। इहदी बीवी दी गल होई है, कहंदा मैं मन्ने नहीं, ए कह दे मेरी भैन, गल खत्म हो जानी है। जरा कर अज तेरे पसीने ने ते गल पी की देखो तुसी अपनी गल करनी हुंदी है, अपनी गल करनी हुंदी है। मेरा स्पीकर भी म्यूट कर छड्ड दिओ, मैनूं बाहर कढ दिंदे हो ਜਦੋਂ मेरी बारी आती है। सुनो देखिए, मैं जमाते अहमदिया के खासे को जानता हूं। आप लोग जो है खवातीन को बदनाम करने वाले हैं, उसकी वजह ये है यार, खवातीन को बदनाम तो तम करें कि हम उसके किरदार का जिक्र है, हम कह रहे हैं वो तुम्हारी बीवी यानी। अच्छा बीवी कहना तो बीवी को बदनाम करना यार, इन्नी बदनामी वाली गल है, शादी क्यों की थी? 10,000 को गल करने वाली। जी जनाब, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ जरी भाई। जरी साहब ये कहना चाह रहे हैं, गोया शमसुद्दीन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा कोई खातून इनके साथ शादी करे वो उसकी बदनामी है। बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं शमसुद्दीन साहब, ये क्या बात हुई? भाई मैंने तो ये तो गलत नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह उन्होंने की उस तरह तो बदनामी है।
नहीं मुबारक भाई देखें मेरी बात सुने, ये लाइव स्ट्रीम जारी है, सारों ने सुना है कि बीवी की बात करने को बदनाम नहीं है। हाँ बस यही तक रहने दे, उससे आगे ना जाए। मैं दसन लगा, देखो मैं जरी साहब हरकत ना करो, मैनू बार बार कभी रिमूव कर देंदे हो, अपना मुद्दा बयान कर लेंदे, लोगों को दस देंदे कि लो जी साडी गल सुन ली है, रजाई दी जो रिमूव करके म्यूट करते, गल सुन लो मेरी। मैं जमाते अहमदिया विच बहुत अरसा गुजारिया है, मेरे वालदैन सारा खानदान हले भी जमाते अहमदिया दे विच है, ते गल सिर्फ इन्नी है कि मैं ते जमाते अहमदिया दा खासा बयान कर लगा कि तुसी किसी भी खातून दी जिहड़ी बदनामी कर दो, मैं तुहानू जानना। अच्छा चलें जी, यहाँ पे एक बात करते हैं, मैं शमसुद्दीन को 20 मिनट देता हूँ, 20 मिनट ये बोल ले, तसल्ली से बोले, कोई बंदा इसको टोकेगा नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर ये उससे पहले कसम दे के 20 मिनट बाद ये इकरार करेगा कि या उसकी बीवी या उसकी बहन है। बस इसको अगर ये मंजूर है तो 20 मिनट बोल ले, 1 घंटा बोल ले, मंजूर है, मैं इसकी ये शर्त मंजूर है। बेशक फिर मिर्जा बशीर अहमद साहब एम ए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ पेश करे, बेशक फिर वो मोहम्मदी बेगम के बारे में जो तारीफ पेश करनी वो पेश, लेकिन ये बिल्कुल पहले के, और फिर ये अपनी जो मर्जी तारीफ पेश करे, मोहम्मदी बेगम की पेश करे, मिर्जा बशीर अहमद साहब एम ए की पेश करे, अगर हम जवाब लेते हैं तो हम मुल्ज़िम हैं, हम गुनाहगार हैं, हम मुल्ज़िम हैं, हम कहेंगे हमारे पास जवाब नहीं है भाई तुम सच्चे हो, चलो जी आ जाओ। तो जी गल सिर्फ इन्नी है, तमाम नाज़रीन सुन लें कि ये इतने बेबस है, 5 लोग स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं और ये बार बार रज़ाई भतीजों को आउट कर रहे हैं, कभी स्पीकर म्यूट कर रहे हैं, ये इनकी हालत है। बंदा क्या इनके चैनल पे गुफ्तगू करे। वो पहले ज़िया भाई आए हैं, वो भी यही कहते रहे, आपने उनको भी टाइम नहीं दिया, ठीक है। अब आगे मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लें, मैं जमाते अहमदिया के अंदर रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका ये खासा है, आपको विरासत में मिला है। ये कौन आदमी है, ये कौन है? ये वो नहीं हो सकते जो जिस आईडी से भाई साहब आए थे, इनको बाद ब्लॉक कर दें। हाँ ये किसी ने हमारे एमडी की आईडी गलत तौर पे इस्तेमाल की है, इनको लोगों को शर्म नहीं आती। अच्छा शमसुद्दीन साहब, ये किसी ने डॉक्टर साहब अब आपको शर्म है? शमसुद्दीन एक मिनट, ये बंदा जो अब्दुल खालिक है इसके बारे में बात करने दो, एक मिनट शमसुद्दीन एक मिनट जी। अब्दुल खालिक मोहसिन फारूकी साहब जो फेसबुक पे हमारे एक मुबल्लिग हैं जो कनाडा में रहते हैं, उनकी किसी ने फेसबुक की ये फेक आईडी बनाई है, इसमें ऐड हुआ है और ये गाली और ये बदतमीजी की है, उनकी आवाज को भी लोग जानते हैं कि ये वो बंदा नहीं है। वो निकल गया जी, नास गया जी, शमसुद्दीन निकल गया जी, ओ पे जांदा जी, ए पे जांदा जी, कटेल सरकार कहंदे जी मैं तहकीक कटकती निकल गया जना, ए दी औकात जी। जी बिल्कुल। चलें जरी भाई, अब बहुत कम ही वो स्ट्रीम होती है जिसके बाद बंदा कहता है कि हुन बंदा अब क्या कहे, ठीक है। तो अब बंदा अब कहे तो क्या कहे, अल्लाह ताला ने हर चीज जो है वो गुजर रहे हैं, हाँ जाहिर और बाहिर कर दिया। ये हमारे एमए भाई जो हैं बड़ी देर से बेचारे सब्र के साथ बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू सुन लें और बात कर लें और फिर मैं खत्म करें, काफी लंबी होगी स्ट्रीम। जी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं बस आप खत्म करें, बहुत टाइम हो गया, मेरा ख्याल बहुत है। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक काम शोर कर लीजिए, जब उससे आप डिपेंड करेंगे वो वुजू करके दूर आए। जी जरूर, वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी वुजू तो नहीं करना है ना, वजू से उन्होंने नहीं करना है ना, असि धक्के नाल नहीं करांदे। लेकिन आप उसको अपनी स्ट्रीम में लेकर आना, आप उनके नहीं जाना, क्योंकि जी पैसे का मामला ना होता जरा। जी जरूर, इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आप सबको। शमसुद्दीन ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ है तो रिंगिंग हो रही है, देखो चुकदा या नहीं चुकदा। जरी भाई मेरा ख्याल है वो काफी हो गई है, लंबी स्ट्रीम हो गई है, तो मामला ठीक है। वो कहता मैंने भी कोई उमर साहब बंदा